milestone in your lives. I have no doubt that you will go on. Yet another batch of bright minds stepping out into the world armed with knowledge, skills, and determination to make a difference. I congratulate the students graduating from the university as well as their proud parents who are present here. I also commend Arunachal. This is a day of fulfillment of for the parents of many of you who might have sacrificed their personal happiness and pleasure to make sure that you get the best of education that leads to a better future. This day, therefore, equally belongs to your parents. I also compliment the faculty members of the university who worked hard to impart education to the students for building knowledge and giving a definite direction to them. More than the degrees, I am sure, the knowledge and values you have imbibed here will guide you wherever destiny takes you. I am indeed very happy to visit the university and to share your joy on this day. I congratulate every single student and researcher receiving the awards today. You have brought laurels not only to yourself, but also to your families and to your institution. This is the time when India is celebrating Amrit Kal or Era of Exile. To the entire nation on India's 75th Independence Day, and you are fortunate enough to complete your certification now. India has emerged. To acknowledge the support system that has been instrumental in your success. To the faculty and staff who have dedicated themselves to your growth and development. We owe a debt of gratitude, your guidance, mentorship, and unwavering belief in our students have laid the foundation for their future endeavors. To the parents, families, and friends who have stood by your side, offering love, encouragement, and understanding, we extend our heartfelt appreciation. The university started in the year 2012 with an aim and mission to provide the quality and skill-based education to the youth of eastern part of Arunachal Pradesh. From the day one, management of the university focused on creating a state-of-the-art university campus that will serve many generations to come. University has done a tremendous progress in providing best infrastructure facilities to the students and the faculty members, including residential facilities for staff and students. देखिए किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए ये बड़े ऑनर की बात होती है यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए कि उसके कॉन्वोकेशन सेरेमनी में स्टेट हेड ऑनरेबल गवर्नर सर उसे प्रेसाइड ओवर करने के लिए आए। अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ 2012 में बना था और आज यूनिवर्सिटी का 8th कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुआ है। ऑल दी वे ऑनरेबल गवर्नर साहब यहाँ पर आए, उन्होंने बच्चों को साथ इंटरेक्ट किया, उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, एक फैकल्टी रेजिडेंस का जो 6th बिल्डिंग है उसे इनॉग्रेट किया और गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल के फाउंडेशन स्टोन रखे, जिसमें से हमारा जो गर्ल्स हॉस्टल है उसका सेकंड फेज़ है जिसमें 700 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी रहेगा और बॉयज़ हॉस्टल का जो उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है उसमें 400 कैपेसिटी रहेगा और ये दोनों हॉस्टल 2026 तक फंक्शनल हो जाएंगे। ऑनरेबल गवर्नर ने यहाँ पे हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी बहुत अप्रिशिएट किया
और उन्होंने एम्फेसाइज किया कि जैसे AUS है उस तरीके का और भी यूनिवर्सिटी स्टेट में आना चाहिए, जिससे कि उन रीजन का डेवलपमेंट हो पाए। आज अराउंड ये 700 बच्चों का कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुआ है। इन 700 बच्चों में से 19 PhD का डिग्री दिया गया है और 52 गोल्ड मेडल दिया गया है। स्टूडेंट्स हैप्पी हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों का प्लेसमेंट हो गया है और बहुत सारे लोगों का प्लेसमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, आप उन्हें ढूंढ सकते हैं, अभी बात करते हुए पता लगेगा, वो एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। वो एम्प्लॉयमेंट खुद तो उन्होंने अपना लिया ही है, वो एम्प्लॉयमेंट दे भी रहे हैं। कुछ स्कीम है यूनिवर्सिटी की जिसमें भूमि जलधारा, इस स्कीम के अंतर्गत हमने अपने बच्चों को प्रमोट किया था, जो यहाँ के ट्राइबल बच्चे हैं जिनके पास ज़मीन है और जिसमें से पानी की नदी निकल रही है। उन बच्चों ने यहाँ पर अपनी स्ट्रीम के पास रिसोर्ट बनाया, होटल बनाया, अब अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया और लोगों को उस एम्प्लॉयमेंट में अपने साथ पार्टिसिपेट करा रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट, कोई भी एंटरप्रेन्योर वेंचर खुलता है, उसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी के बैम्बू टेक्नोलॉजी प्रोग्राम हैं, उन बैम्बू टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में भी हम लोगों ने अराउंड 60 स्टूडेंट्स को अभी तक ट्रेन कर दिया है, जो सब एज फ्रीलांसर काम कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी अभी एक नए होराइजन की तरफ बढ़ रही है। अभी तक हम लोग एक मीडियोकर, एक छोटी यूनिवर्सिटी की तरफ चल रहे थे, लेकिन अब इंफ्रा वाइज आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के पास एक अराउंड 4.5 लाख स्क्वायर फीट का इंफ्रास्ट्रक्चर है। बहुत जल्द हम लोगों के पास यहाँ पर इनबिल्ट कैंपस के अंदर हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी आ जाएंगे। तो हमारा लॉन्ग टर्म विज़न ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर हम इसे एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करें, जिसके अंदर इंक्यूबेशन सेंटर हो और आगे बढ़ने के लिए बच्चों को गाइडेंस दी जाए। यूनिवर्सिटी एक नए प्रोजेक्ट के साथ और आ रही है, जिसमें हम लोग विलेज लेवल स्किलिंग एंड ट्रेड सेंटर खोलेंगे। हम गांव से ही बच्चे को उठाएंगे और उसे एक उद्यमी या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ट्रेन करेंगे। उस गांव के हिसाब से हम लोग उनके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि इस गांव में कौन सा प्रोडक्ट ऐसा बनाया जा सकता है जिस प्रोडक्ट को मार्केट किया जा सके। अभी तक आप देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से चाय बाहर जा रहा है। ये चाय तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसमें कैंड जूस भी हो सकता है, बैम्बू प्रोडक्ट भी हो सकता है, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो बाहर नहीं मिलते हैं। जैसे आपने याक चीज़ का नाम सुना होगा, वो भी हो सकता है। तो उस दिशा में काम करके मुझे लगता है कि हम लोग कुछ अच्छा अरुणाचल प्रदेश के लिए कर पाएंगे।